हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट हियर, द Sepoy is called the Mughal Pandey. There is a Sepoy is called Mangal Pandey was the first soldier who opening this swell order, and he killed two English officers at the Bracovers near Calcutta on 29 March 1857, and he was arrested and tried to executed. The regiment of Bracopores was disbanded. The news of Mangal Pandey's very soon and this other part of country and resulted in the open revolts. Here come to picture, there is the most important person here, Mangal Pandey. Mangal Pandey is the first person in the revolt of 1857 and he was a killer too, a British officer, and arrested the British police. And there is the most important for 1857 revolt. The most decisive uprising occurring at the Meerut, where 85 sepoys of their cavalry and regiment were sentenced to be 2 to 10 year imprisonment for the refusing to use a grace is a courteous, and their very next day on the 10 May is 1857 and three regiments broke into the open mutiny. There is a kill to British officers and broke open the persons and to release their commanders. They began to march toward to Delhi, and there is were joined by the local infantry and common people. The rebels is a capture of Delhi and kill many British officers, and they declare the Mughal Empire Bahadur Shah as the Empire of India. From Delhi to revolt spread to other places. In Kanpur, Nana Sahib was declared to the Peshawar. His troops were commanded by Tatya Tope. Tatya Tope is the most important person, and Azimullah. Azimullah is also important on this period time. At the Lucknow, Begum Hazrat Mahal was assisted by the Malabis Ahmadullah. In a Jhansi, Rani Lakshmi Bai and the Ara Kunwar Singh. Kunwar Singh is led to revolt, and Khan Bahadur Khan, and there is the leader of Bareilly. There is the most important revolt on this period time, a different part, different revolt. Here show the picture, there is the most important Hazrat Mahal. There is the most important person is a female. They take a part of the revolt of 1857. The loss of Delhi greatly lowered the prestige of British. To recover their loss and prestige, they took help to the loyal forces for Punjab. There is this time the loyal forces for the Punjab, assault to the lasted 4 months, and Delhi was finally recaptured on 10th September 1857. It took another 10 months of fighting before the Governor General Lord Canning. There is a Governor General on this time, Lord Canning, and could be proclaimed to the end of the mutiny on 8th July 1858. There is some important, there is the end of proclaim. A steep resistance has been offered to the British force by the heroics cheers are the rebellions Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Tatya Tope and Kunwar Singh. Rani Lakshmi Bai led to be rebels ranks. Mounted on the horseback, she boldly is faced their British cavalry and but her horse is stampled and the field she was killed. According to British commander in chief Sir Hugh Ross, he was the best and bravest military leader of the rebels. And Kunwar Singh was killed in another battle in Bihar, and Tatya Tope was captured well, and he was asleep. He was hanged after a trial,
And this was the end of the heroics trios, and the rebellion was finally surprised by the British. The all empire Bahadur Shah, along with his two sons, was taken prisoner. After the trials, he was deported to the Rangoon, where he died in 1862 at the age of 87. His sons were shot dead at Delhi without a trial. He must be now look into the causes for the failure of revolts. उसके पश्चात हमारे समक्ष है विद्रोह के चरण। कहते हैं मंगल पांडे पहला सैनिक था जिसने खुले रूप में आदर्शों का उल्लंघन किया। यानी मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध गया और कलकत्ता के पास बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को उसने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई। बैरकपुर के रेजिमेंट को तोड़ दिया गया और मंगल पांडे के समाचार बहुत जल्दी देश के दूसरे भागों में भी पहुंच गया और परिणाम स्वरूप खुले विद्रोह भड़क उठे। सबसे निर्णायक विद्रोह मेरठ में हुआ, जहां पर घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट के 85 सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने पर 10 वर्षों की कारावास की सजा दे दी गई। और इसके अगले ही दिन अर्थात 10 मई 1857 को 3 रेजिमेंट ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और अपने साथी सैनिकों को छुड़वाने के लिए जेलों को तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली की ओर कुछ किया और कुछ करके शुरू कर दिया, जहां उनके साथ स्थानीय पैदल सेना और सामान्य लोग भी मिल बैठे। बागियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अनेक अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो देखिए मंगल पांडे के कारण ये विद्रोह का सूत्रपात हुआ। और कहते हैं जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो हर क्षेत्र में इसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन यह तब जाके और भड़क गई जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तब वहाँ के सिपाहियों को लगा कि ये अंग्रेज हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, हमारे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आपके समक्ष जो तस्वीर दिख रहा है ये वो सिपाही है जो 1857 क्रांति के मेन सूत्रपात थे, यानी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने पहला क्रांति के बिगुल बजाया और बेशक ये फांसी पे चढ़ गए, लेकिन इन्होंने अपने पीछे क्रांति का एक विशाल रूप छोड़ गए। देखा जाए तो ये विद्रोह दिल्ली से यह विद्रोह अन्य स्थानों तक फैलने में देर न लगी और कानपुर में नाना साहिब के पेशवा घोषित कर दिया गया। उनकी सैनिक टुकड़ियां ट्रूप्स की कमान तात्या टोपे और अजमुल्ला ने संभाल ली और लखनऊ में बेगम हजरत महल की सहायता मौलवी अहमदुल्ला ने किया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी हर क्षेत्र में ये विद्रोह फैली। बरेली में इसके नेता थे खान बहादुर खान। और दिल्ली की हार ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को और बहुत चोट पहुंचा दी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल करने के लिए उन्होंने पंजाब के अपने वफादार सैन्य बल की सहायता ली। कहते पंजाब ही था जिसके कारण 1857 क्रांति सफल नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ पर भी अपनी नीतियों का और अपने फूट डालो राज करने की नीतियों का अनुसरण करवाया और पंजाब के लोगों को सैनिकों में भर्ती की और उनका आश्वासन प्राप्त किया। तो कहते पंजाब के अपने वफादार सैन्य बल की सहायता उसने लिया और सैनिक घेराबंदी 4 महीने तक चली और अंततः 10 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुण्य जीत लिया गया। और यह युद्ध 10 महीने तक चला और जब तक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई 1858 को इस बगावती विद्रोह को समापन की घोषणा नहीं कर दी। यानी देखा जाए तो 1857 क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई 1858 को समाप्त होने की घोषणा की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोप या कुंवर सिंह बड़ी बहादुर से अंग्रेजी सैन्य बल के टक्कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने बागी सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्होंने घोड़े पर सवार हो अंग्रेजी घुड़सवार सैनिकों को डटकर मुकाबला किया।
परंतु उसका घोड़ा ठोकर से लड़खड़ा गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज कमांडर ई चीफ सर हुग्स रोज के अनुसार वह विद्रोहियों की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वीर सैनिक नेता थी। कुंवर सिंह का निधन बिहार में एक अन्य लड़ाई के दौरान हुआ और तात्या टोपे जो है सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और एक मुकदमा चलाकर उन्हें भी फांसी दे दी गई और इस प्रकार इन तीनों बहादुर नायक का अंत हुआ। अंततः इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण 1857 क्रांति थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष चित्र प्रस्तुत हुआ है हजरत बेगम हजरत महल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण 1857 क्रांति में अपना योगदान दिया इन्होंने। वृद्ध हुए शाहजहां बहादुर शाह जफर को उनके दो पुत्रों सहित कारागार में डाल दिया गया और एक मुकदमे के पश्चात उसे रंगून में देश निकाला दे दिया गया, जहां पर 1862 में 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। कहते हैं उसके पुत्रों के बगैर कोई मुकदमा चलाए ही दिल्ली में गोली मार दी गई।